أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, apologies for a little bit delay, little bit lagging of internet on my side. And let's start our webinar. On behalf of Al Sadiq Institute of Islamic Banking, Finance and Takaful, I warmly welcome all of my participants today on a webinar on Islamic banking, corporate treasury management under Islamic banking. My name is Sayyida Madiha Arbab. I'm member of the executive committee and I will be moderating this session. A few housekeeping points. Duration is from 3 till 4 p.m., including the time for Q&A and panel discussion. And a bit introduction about the institute. You must have gone through that. And now a little bit of introduction of our treasured speaker. Mr. Hassan is a seasoned finance professional with over 18 years of extended domains of treasury, corporate finance, supply chain finance, trade credit, and digitalization. His professional objective has consistently been to maximize profitability while mitigating risk in corporate and treasury functions at both strategic and operational levels. Let me highlight some of his key achievements. Secured successfully PKR 2 billion in new funded and non-funded lines. Spearheaded the digitalization of payment processes at International Steels, implemented a real-time integrated cash management solution system. And played a lead finance role in the expansion project worth rupees 5.3 billion and achieved PKR 28 million cross saving through efficient FX negotiations. He is recognized by the CEO of International Steel, and with such a profile, definitely he is a very valued treasure, and he is going to share his knowledge about modern Islamic treasury practices. We are honored to have him with us today to share the insights on Islamic treasury. Mr. Jamal, the floor is yours. Thank you, sir. Assalamu alaikum. I hope Walaikum assalam. everyone is well. Alhamdulillah. You have given my introduction, a brief introduction. So I just want to add that I worked both in banking industry for 8 years, and since 2015 I have been working in different corporate treasury in fertilizer industry. Recently I am working with a
company which is manufacturing of fertilizer. Before this, I was in an OMC business related company, and before this, I was in a steel manufacturing business, that is a very blue chip company, Intercell Steel Limited, where I spent 7 years. Currently, I am working as a general manager, treasury and finance, and looking after corporate treasury function of the group companies. So this is my brief introduction. I would like to give the lecture in Urdu because I believe that in mother tongue, the level of understanding, the level of expression would become more easier and would become more effective. So if you do not have any objection on it, so shall I proceed in Urdu? Yes, sir, please. I guess we don't have participants with us. Okay, thank you. Okay, thank you. Yes, sir, you can. देखें ट्रेजरी मैनेजमेंट अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल या इस्लामिक ट्रेजरी मैनेजमेंट जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है. एक तो है ट्रेजरी मैनेजमेंट. पहले हम वो थोड़ा सा समझ लेंगे कि ट्रेजरी मैनेजमेंट इटसेल्फ क्या है. चाहे वो बैंक की ट्रेजरी हो, चाहे वो कंपनीज की ट्रेजरी हो, वो ट्रेजरी का फंक्शन और ऑब्जेक्टिव और उसका जो अल्टीमेट गोल है वो एक ही होता है, चाहे वो बैंक की ट्रेजरी मैनेज हो रही हो या वो कंपनीज की ट्रेजरी मैनेज हो रही हो. दूसरी चीज ये है कि वो दो तरीकेकार हैं हमारे पास इंडस्ट्री में, जिसके थ्रू या दो मोड ऑफ बैंकिंग है जिसके थ्रू हम ट्रेजरी को मैनेज कर सकते हैं. यानी टूल्स हमारे पास दो किस्मों के मौजूद हैं. एक वो टूल जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग के टूल है या कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग है या कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हैं वो. दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है शरिया कंप्लाइंट टूल्स या इस्लामिक बैंकिंग के टूल्स या इंटरेस्ट फ्री टूल्स, आप जो नाम भी उसको दे दें, वो अंडर इस्लामिक रूल या अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल जो है वो यूज होते हैं. तो यहाँ तक बात मेरे ख्याल में क्लियर है. ट्रेजरी मैनेजमेंट के हवाले से अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ट्रेजरी मैनेजमेंट है क्या, ट्रेजरी क्या है. इसको इसको आसान अल्फाज में हम अगर एक्सप्लेन करें तो ट्रेजरी, अगर मैं उर्दू में इसको ट्रांसलेट करूँ, इसका जो तर्जुमा है वो है खजाना. तो आप खजाने को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, खजाने में पैसे आते भी हैं, खजाने में पैसे जाते भी हैं. तो आप उस खजाने के कस्टोडियन हैं या ट्रेजरी मैनेजर हैं या ट्रेजरी हेड है या आपकी कंपनी का वो खजाना है या आपके बैंक का वो खजाना है, तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. यानी जब वो खजाना खाली होने लगे तो आपको उसके अंदर पैसे किस तरह से लेकर आना है, वो खजाना भर जाए तो उस खजाने को किस तरह से इस्तेमाल करना है. आज हम उसको अंडर इस्लामिक रूल या अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि हम उस खजाने को कैसे मैनेज करते हैं अंडर द शरिया कंप्लाइंट रूल या अंडर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग. तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हमारी अब्बास आगे मूव करें. अब्बास, काइंडली सर को रिमोट एक्सेस दे दो ना बेटा. डू यू एक्चुअली हैव द जी एक्चुअली जी. मेरा लैपटॉप नहीं वर्क कर रहा है, तो मुझे जो है ना ये अब्बास की हेल्प पे लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं अब्बास. नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज. ही इज वेरी सपोर्टिव, ही कैन हेल्प यू. अब्बास बेटा ये कर दो. तो ट्रेजरी मैनेजमेंट में जो हमारी जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, फंड मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट. इन चार चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो है ट्रेजरी मैनेजमेंट. यानी लिक्विडिटी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट.
ये चारों चीजें या चार स्टेप्स या चार पार्ट हैं किसी भी ट्रेजरी को मैनेज करने के, या चार टुकड़ों में हम तकसीम करते हैं किसी भी खजाने को मैनेज करने के लिए। अच्छा, हम ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, इसको मैनेज करने के ट्रेजरार का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि खजाने को मैक्सिमाइज, उससे जो है वो बेनिफिट लिया जाए, ऑप्टिमाइज यूज करा जाए फंड्स को, और कोई भी फंड जो है वो आइडल ना पड़ा रहे। कोई भी फंड जो है वो आइडल पड़ा रहेगा तो वो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल लॉस की सूरत में उसका कंपनी को या बैंक को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हम इसको अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल की बात करें कि अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल उस पर क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, अगर हम ट्रेजरी को मैनेज कर रहे हैं तो उसमें रिबा फ्री होना चाहिए, उसमें कोई सूद का अंसर शामिल ना हो। दूसरी चीज, उसमें कोई गरर या उसमें कोई अनसर्टेनिटी ना हो, यानी कोई गैर यकीनी सूरत हाल ना हो। तीसरा, उसमें कोई गैम्बलिंग का फैक्टर ना हो, यानी जुए का फैक्टर ना हो। ये हम आगे इसको एलिब्रेट करेंगे तो आपको ये बातें रिलेट कर सकेंगे और आप समझ सकेंगे। चौथा, इसमें ये कि कोई भी ऐसी चीज उसमें इन्वॉल्व ना हो जो कि गैर शरई हो, यानी कंपनी जो है वो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, या बैंक्स अगर किसी कंपनी को फाइनेंसिंग दे रहे हैं तो वो कोई अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग या पोर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो। तो इस इन शरिया रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेजरी मैनेज कर रहे होते हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक ट्रेजरी मैनेजमेंट ये है कि मेंटेन लिक्विडिटी थ्रू शरिया कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मैनेज फॉरेन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट एथिकली और ऑप्टिमाइज रिटर्न्स विदाउट इंटरेस्ट। एंड फोर्थ इज सपोर्ट रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी वाया एसिड बेस्ड ट्रांजैक्शंस। अब इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव को हम किस तरह से इस्लामिक मोड में हम मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम कन्वेंशनल मोड में हम मैनेज करते हैं। तो आपको उससे डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और आपको इस्लामिक का जो है वो आइडिया या कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात करें तो लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप कन्वेंशनल मोड में भी यूज कर सकते हैं और इस्लामिक मोड में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आपकी कंपनी के पास एक्सेस पैसे पड़े हैं या उस ट्रेजरी के पास या उस खजाने के पास इजाफी रकम मौजूद है तो उस लिक्विडिटी को आप कहाँ पे रखेंगे। आप या तो कन्वेंशनल मोड की अगर बात करें तो आप बैंक डिपॉजिट में रख सकते हैं। कन्वेंशनल मोड की अब बात करें तो आप एक्सेस लिक्विडिटी को अपने किसी भी कंपनी के शेयर में रख सकते हैं, शेयर आप खरीद सकते हैं, आप उससे सुकूक, आप उससे टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप उससे टी बिल्स ले सकते हैं, आप उससे बॉन्ड्स ले सकते हैं। जो भी कन्वेंशनल मोड्स हमारे पास मौजूद हैं जो कन्वेंशनल प्रिंसिपल के थ्रू चलते हैं उसके अंदर हम अपना पैसा प्लेस करते हैं, उससे हम अर्न करते हैं, मार्कअप अर्न करते हैं और हमारी लिक्विडिटी जो है वो अफेक्टिवली मैनेज होती है। अगर उस पैसे को फॉर सपोज हम कहीं भी इन्वेस्ट ना करें और वो करंट अकाउंट में हमारा पैसा पड़ा रहे तो जाहिर सी बात है उसका कोई एफिशिएंट यूज नहीं होगा और वो हमें फाइनेंशियल लॉस की सूरत में जो है वो उसका नतीजा निकलेगा। अब अगर इसी चीज को हम अंडर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग या इस्लामिक प्रिंसिपल के थ्रू अगर हम यूटिलाइज करना चाहें तो हम कहाँ यूज करेंगे। हम इस्लामिक बैंक के डिपॉजिट में वो पैसे रखवाएंगे, या हम इस्लामिक फंड मैनेजमेंट कंपनीज जो है जैसे अलमीजान है या फिर अलामीन फंड मैनेजमेंट है या इसी तरह से नफा है, नेशनल
बैंक की एक जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, तो हम उनके फंड्स में अपना पैसा जो है वो प्लेसमेंट करेंगे। हम अगर शॉर्ट टर्म अगर हमें प्लेसमेंट करनी है तो हम इस्लामिक बैंक्स के डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। अगर हमने कोई इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के शेयर्स खरीदेंगे। अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट करनी है तो हम गवर्नमेंट के सुकूक में या प्राइवेट कंपनीज के जो सुकूक हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो हम लिक्विडिटी को अपनी उन मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में या उन प्रोडक्ट में यूज करेंगे जो कि शरिया कंप्लाइंट हो। इसी तरह से अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की बात करें या हम बोरिंग की बात करें तो वो भी हम अंडर इस्लामिक प्रिंसिपल कर सकते हैं। वो किस तरह से हम डिफरेंस है उन दोनों में, यानी कि इस्लामिक में अगर हम अपना एफएक्स रिस्क हैच करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं, और अगर इसी को हम कन्वेंशनल मोड में करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। दोनों में बुनियादी फर्क है कॉन्सेप्ट का, नियत का और रूल्स का। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी ट्रांजैक्शन को हलाल और हराम बनाने के लिए ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर अमल करा जाएगा, उसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट बनेगी। दूसरी नीयत है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बड़ी मशहूर एक आर्गुमेंट पेश किया जाता है कि ये इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग कुछ भी नहीं है। आप कान उल्टे हाथ से पकड़े हैं या कान सीधे हाथ से पकड़े हैं, बात बिल्कुल एक ही है। और एक तस्वीर भी चलती है जिसमें वो एक बंदे को तस्बीह पहनाई गई है हाथ में उसके, और एक बंदा टाई पहना हुआ है, और दोनों एक ही चीज बेच रहे हैं। और प्रेजेंट ये किया जाता है, जो कि क्रिटिक्स हैं, कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो सिर्फ जो है वो नाम चेंज करके और चीजें चेंज करके जो है ना वही चीज जो है वो बेची जा रही है, और इसमें और इस्लामिक और कन्वेंशनल में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, मैं इसी मिसाल को देता हूँ कि कान एक तरह से पकड़े हैं तो वो हलाल हो जाता है और दूसरी तरह से पकड़े तो हराम हो जाता है। तो इसकी मिसाल है, हम कुर्बानी करते हैं बकरीद ईद में, जानवरों को हलाल करते हैं। अगर हम जानवरों को हलाल करने से पहले बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर नहीं पढ़ेंगे तो वो हराम हो जाएगा। अगर हम जानवरों को ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ देंगे तो वो हलाल हो जाएगा। अगर हम जानवर को किबले के रुख उसकी गर्दन नहीं होगी तो वो हराम हो जाएगा, अगर किबले के रुख उसकी गर्दन होगी तो वो हलाल हो जाएगा। तो कान को पकड़ना ही तो इस्लामिक रूल के मुताबिक अगर है तो ही तो वो इस्लामिक बनेगा। यानी अगर हम जानवर को कुबले के रुख लिटाएंगे और उसको कुर्बानी करते हुए बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर कहेंगे तो ही तो वो इस्लामिक बनेगा। मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल वाकई कोट करता हूँ, कुरान मजीद में जब यह कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फिरौन से निजात अता करे और वे एक बस्ती में गए तो इनको एक हुक्म मिला कि आपको एक वर्ड पढ़ना है, आपने उस वर्ड को कोई चेंज नहीं करना, यानी उस वर्ड को ही नहीं बदलना। लेकिन उन्होंने क्या हरकत करी, उन्होंने उस वर्ड में एक एडिशनल कर दिया, वो हिंततुन को हित्ततुन कर दिया। यानी एक वर्ड का मतलब सिर्फ ये था कि आप खुदा का शुक्र अदा करें, और दूसरे वर्ड का मतलब ये था कि "ए अल्लाह हमें गंदुम दे या हमें रिस्क दे", इस तरह की उसकी वर्डिंग थी। तो सिर्फ एक नुक्ते या एक लफ्ज यानी उस पूरे वर्ड को उन्होंने चेंज नहीं करा, एक सिर्फ लफ्ज की वजह से यानी एक अल्फाबेट की वजह से वो पूरा जो है वो सिनेरियो चेंज हो गया, और अल्लाह ताला ने उसको उस कौम को दोबारा से 40 साल जो है वो भटका दिया और अजाब में मुब्तला कर दिया। तो शरिया को समझने के लिए बड़े नाजुक एक चीज है कि इस्लामिक प्रिंसिपल और इस्लामिक रूल्स को एज इट इज फॉलो करना है। यानी अगर आप वजू करने जा रहे हैं तो पहले आपको जो है वो मुंह ही धोना है, पहले आप हाथ नहीं धो सकते। यानी तरतीब जो है वही आपने रखना है। अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले नियत करनी है, उसके बाद आपको नमाज शुरू करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप नमाज पढ़ लें और आखिर में आप नियत करें। तो भाई तरतीब बहुत जरूरी है, और बड़ी बारीक चीजें हैं जो शरिया पे अगर अमल दरामद नहीं हो तो वो उसको गैर शरई बना देती हैं। मिसाल के तौर पे एक मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा कि जब हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि एक मोड ऑफ फाइनेंसिंग होता है मुराबा, तो उसमें ऑफर इन एक्सेप्टेंस होती है। अगर डिलीवरी से पहले वो चीजें डॉक्यूमेंट साइन होते हैं तो वो ट्रांजेक्शन को हलाल बना देती है, और अगर वो उस वक्त साइन नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्यूमेंट, तो वो उस ट्रांजेक्शन को हलाल से हराम में कन्वर्ट कर देती है, और फिर उसका मार्केट या प्रॉफिट जो भी बैंक है उसको चैरिटी करना पड़ता है।
तो ये बड़ी मामूली सी एग्जांपल है कि अगर आपकी नीयत में या तो खोट है फितूर है कि अगर आप इस्लामिक बैंकिंग को यूज कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, एक नीयत हो गई, दूसरा आप प्रिंसिपल ही तो पूरा उतर रहे हैं और उसको इस्लामिक रूल्स के ऊपर फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इसकी एक और मिसाल मैं देता हूँ कि लास्ट ईयर दिसंबर में बैंक्स को ये टारगेट मिला कि उनका एडवांस को डिपॉजिट रेशियो जो है वो 45% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 45% से कम होगा तो उनको स्टेट बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 4% या 5% टैक्स की जो है ना वो पेनल्टी जो है वो हिट करेगा। तो इस्लामिक बैंक्स हो या कन्वेंशनल बैंक्स हो, दोनों ने उस एडवांस डिपॉजिट रेशियो को compete करने के लिए या मैच करने के लिए विंडो ड्रेसिंग करी, और इस्लामिक बैंक ने खुसूसन कंपनीज को बिलियंस ऑफ रुपीज दिए और उनसे कहा कि आप ये पैसा हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में रख दें और हम इसको जो है वो फिक्स टर्म के ऊपर जो है ना उस पर रखवा देंगे, और उतने ही टर्म की आप हमसे फाइनेंसिंग ले लें, आपको कोई फाइनेंशियल हिट नहीं लगेगी, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो टैक्स जो है ना जो हमें हिट जो लग रही है वो बच जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि इस्लामिक बैंक्स ने शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट यूज करी हैं, इस्लामिक बैंक्स ने वो पैसा अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में रखवाया जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज थी, लेकिन उनकी नीयत जो है वो कुछ और थी। उनकी नीयत ये नहीं थी कि उसमें वो इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं और उसमें वो इस्लामिक बैंकिंग के जरिए मईशत को फरोग दे रहे हैं, उसमें जो है वो कस्टमर की कोई हेल्प कर रहे हैं, कस्टमर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो पैसा दे रहे हैं, नहीं। वहां पे नीयत जो थी वो सिर्फ ये थी कि हमारा एडीआर जो रेशियो है वो कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लाइंट हो जाए और हमें जो है 4% टैक्स जो है वो बच जाए। ये काम इस्लामिक बैंक्स ने भी करा और ये काम कन्वेंशनल बैंक्स ने भी करा। इस्लामिक बैंक्स ने इस्लामिक प्रोडक्ट्स को यूज करके करा, कन्वेंशनल बैंक ने कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स को यूज करके करा, काम दोनों ने सेम करा। अब आप देखिए दोनों की नीयत यही थी कि उनका टैक्स बचना है। तो चाहे वो इस्लामिक बैंक्स हो या कन्वेंशनल बैंक्स हो, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, उनकी नीयत जो है वो टैक्स बचाना था, वो दोनों की बच गई। लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स की ट्रांजेक्शन है मेरी नज़र में वो ट्रांजेक्शन एज पर शरिया, एज पर इस्लामिक प्रिंसिपल वो वॉइड है, क्योंकि उनका प्रिंसिपल और उनकी नीयत, प्रिंसिपल बिल्कुल सही था, इस्लामिक था, लेकिन जो उनकी नीयत थी वो इस्लामिक नहीं थी, वो कुछ और थी, वो उस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव को पूरा ही नहीं उतरता। क्योंकि जब आप फाइनेंसिंग देते हैं किसी भी कस्टमर को तो उसमें आपके कुछ रूल्स होते हैं, यानी आप या तो आप उसको एज अ लेंडर आप पैसा दे रहे हैं, अगर आप कन्वेंशनल मोड में, अगर आप इस्लामिक में हैं तो या तो आप उसका उसके बिजनेस के पार्टनर बन रहे हैं, या आप उसके खरीदार बन रहे हैं प्रोडक्ट के, या आप उसको उसकी प्रोडक्ट को सेल करके परचेज करके उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, फाइनेंसिंग नीड उसकी पूरी कर रहे हैं। तो ये मैंने तमीज इसलिए बांधी है कि लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है ना कि इस्लामिक और कन्वेंशनल मोड एक ही है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है और कान यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए सिर्फ ये तमीज मैंने बांधी है कि भाई अल्लाह ताला ने जिस तरह से जो चीज लिखी है ना उस तरह से ही आपने करना है, और नियत भी आपको उसी तरह से अपनी रखना है जो नियत होनी चाहिए। अगर आपकी नियत में फितूर आ गया तो भी वो शरिया कंप्लाइंट ट्रांजेक्शन नहीं रहेगी। अगर आपकी प्रिंसिपल्स में और आपकी तरकीब में, अगर आपके तरीकेकार में अगर कोई लूप होल आ गया तो भी वो ट्रांजेक्शन शरिया कंप्लाइंट नहीं रहेगी और इस्लामिक नहीं रहेगी। जब हम ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो भी हमारी दो चीजों का मद्देनजर रखते हैं कि हमारी जो ट्रेजरी मैनेज हो रही है उसमें हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल भी यूज हो रहे हो, और हमारी नीयत भी यही हो कि हमारा उसमें बेनिफिट उठाने का मकसद ये है कि हमारी कंपनी को लॉस ना हो या हमारे बैंक को लॉस ना हो, लेकिन उसमें कोई भी इस्लामिक रूल्स को हम जो है वो ना तोड़ें। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी शरिया कंप्लाइंट है लेकिन वो बनाती है अल्कोहल, तो क्या एज अ इस्लामिक ट्रेजरर मैं उस कंपनी के शेयर में अपनी लिक्विडिटी को यूज करूंगा, वहां मैं प्लेसमेंट करूंगा, या मैं एज अ बैंक वहां पे अपने शेयर को प्लेस करूँ, अपने पैसों को प्लेस करूंगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो कंपनी ने शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेट वो ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि लेकिन उसकी जो अल्टीमेट प्रोडक्ट वो इस्लामिक नहीं है। वो बना रहा है, अल्कोहल मैन्युफैक्चर कर रहा है, या वो कोई असले की उसकी फैक्ट्री है, या वो पॉट की मैन्युफैक्चरिंग की कोई वो कर रहा है। तो मैं ये दोनों चीजें देखूंगा कि मैं अपने पैसे को वहां पे कंपनी में नहीं लगाऊंगा। इसी तरह से अगर मैं पैसा को मुझे कहीं से फाइनेंसिंग भी चाहिए, चाहे मुझे वो शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंसिंग चाहिए या वो लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, तो मैं उस पैसे को कोशिश करूंगा कि अंडर इस्लामिक रूल, अंडर इस्लामिक लॉ, मैं उन मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग को यूज करूं जो कि शरिया कंप्लाइंट हैं और शरिया के रूल के हिसाब से बने हैं। इसमें एक और पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब हम इस्लामिक रूल की बात करते हैं या शरिया कंप्लाइंट रूल की बात करते हैं तो हमारी फाइनेंसिंग जो है ना वो हवा में नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई एसेट होता है, एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग होती है।
अब ये अगर हम कन्वेंशनल की बात करें तो कन्वेंशनल में इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा हुआ जाता। उसकी मिसाल मैं समझाने के लिए ये देता हूँ कि आप एक बैंक से फाइनेंसिंग लेते हैं, कन्वेंशनल बैंक से फाइनेंस लेते हैं, तो वो बैंक आपको एज अ लेंडर अपने आप को ट्रीट करता है और आपको एज अ बोरोवर ट्रीट करता है। यानी वो आपको पैसा उधार देता है और वो आपसे बदले में इंटरेस्ट लेता है और वो आपको अपना कर्जदार जो है वो ट्रीट करता है। जबकि इस्लामिक बैंक में जब आप फाइनेंसिंग को लेने जाते हैं तो बैंक का रोल वहां पे एज अ लेंडर नहीं होता। वहां पे वो आपसे पूछेगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए तो वो आपको मुराबा ऑफर करेगा, यानी आपको पूछेगा कि आपको पैसा क्यों चाहिए। आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि मुझे अपनी शॉप के लिए या अपनी फैक्ट्री के लिए ट्रेडिंग प्रोडक्ट चाहिए कि मैं इन्वेंट्री लूं और उसको बेचूं प्रॉफिट रख के। तो बैंक वहां पे वो प्रोडक्ट आपको एडवाइस करेगा कि जो उस ट्रांजेक्शन को मैच करती है, और उसमें बैंक का अपना रोल लेंडर का नहीं होगा, बल्कि बैंक अपना रोल उसमें मुराबा का रोल में, एक वो जो प्रोडक्ट है जो एज कम्पेयर टू आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लेते हैं इन्वेंट्री खरीदने के लिए कन्वेंशनल बैंक से, उसके मुकाबले में वो आपको मुराबा ऑफर करेगा या मुसावमा ऑफर करेगा, जिसमें बैंक खुद एज अ ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट प्रोक्योर करेगा, वो परचेज करेगा और आपको पैसे नहीं देगा, वो आपको प्रोडक्ट दे देगा। इस सूरत हाल में वो जो बैंक है वो एज अ ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट देगा और आपको एजेंट बनाएगा और आपको ये कहेगा कि ये प्रोडक्ट बेचो। इस प्रोडक्ट के बेचने से जो प्रॉफिट आएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। जबकि कन्वेंशनल मोड में उसको इस चीज से गरज नहीं है कि आपने वो जाके इन्वेंट्री ली नहीं ली, वो आपके अकाउंट में सिंपल पैसा क्रेडिट कर देगा और उसका जो बैंक का रोल होगा वो होगा लेंडर का और आपका रोल होगा बोरोवर का। इन दी एंड बैंक को सिर्फ इस बात से गरज होगी कि वो अपना मार्कअप और प्रिंसिपल रिकवर कर ले। जबकि बैंक जो है इस्लामिक मोड में अगर काम करेगा तो वो इस बात को इंश्योर करेगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट पे बिके और आप जो है वो प्रॉफिट में हो। मिसाल के तौर पर अगर आप लॉस में चले गए तो फिर वहां पे बैंक अपना प्रॉफिट रिकवर नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से इस्लामिक बैंक डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में एक्ट करते हैं, और कमर्शियल बैंक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। अगर एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग नहीं हो तो उससे होगा क्या? अगर एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग नहीं हो, यानी अगर कंपनियां पैसा लेती रहें और उसके पीछे कोई एसेट को यूज ना करें और एसेट लेके मार्केट में बेचे ना, तो फिर उससे होता है कि वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेशन क्रिएट होता है मार्केट में, जितनी मनी ज्यादा होगी और जितनी मनी सर्कुलेट होगी इन्फ्लेशन उतना ही बढ़ेगा, अगर उसके पीछे एसिड बैग ना हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई बैंक आपको पैसे देता है किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और आप उस पैसे को लेके वो प्रोजेक्ट नहीं बनाते या वो एसिड खड़ा नहीं करते, एसिड नहीं बिल्ड करते, तो वो पैसा जो है वो इकोनॉमी में चले जाएगा और वो सर्कुलेशन में चला जाएगा और उसके पीछे कोई एसिड जब खड़ा नहीं होगा तो वो इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी को इंक्रीज करेगा, और सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो इन्फ्लेशन को या अफरात ज़र को जन्म देती है। जबकि अगर आप इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में बात करेंगे तो जब आप बैंक से अपने किसी एसेट को बनाने के लिए पैसा लेते हैं तो वो इस बात को इंश्योर करता है कि ये एसेट बने भी, ये एसेट जो है वो तैयार भी हो और वो एसेट जो है वो इकोनॉमी में इंक्लूड भी हो। उसकी वजह से जो है वो अफरात ज़र या इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में इंक्रीज नहीं होती। तो इसलिए इस्लामिक बैंकिंग जो है वो एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग को बिलीव करता है और उसको सपोर्ट करता है और उसी को फाइनेंस करता है। किसी भी फाइनेंसिंग में अगर कोई एसेट बेस्ड अप्रोच मौजूद नहीं है या एसेट मौजूद नहीं है तो बैंक्स उसको फाइनेंसिंग या बैंक्स उसके अंदर अपना पैसा यूटिलाइज नहीं करते। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अब्बास। अब ये डिफरेंस कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं एलिब्रेट करने के लिए कि अगर आप इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग यूज कर रहे हैं या कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग यूज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। वो मैंने कंपेरेटिव एक छोटी सी स्लाइड बनाई है, उसको देखते हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट है। स्लाइड आपको विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir.
अच्छा, जो पहला फाउंडेशन है वो फर्क ही इंटरेस्ट बेस्ड और प्रॉफिट बेस्ड का है। जैसे मैंने अभी जिक्र करा कि जब कन्वेंशनल बैंक आपको पैसे देते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंटरेस्ट कमाना होता है। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि आप प्रॉफिट में हैं या आप लॉस में हैं। जबकि इस्लामिक बैंक जब आपको पैसे देते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो आपके बिजनेस पार्टनर या तो बन जाते हैं। पार्टनर कैसे बनते हैं, या तो वो आपको प्रोडक्ट लेके और आपको सेल आउट कर देते हैं, तो वो सेलर और परचेजर की कैपेसिटी में आ जाता है बैंक। या वो अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देता है तो फिर वो जो है वो रब्बुल माल की कैपेसिटी में आ जाता है, और आप मल्टीप्लायर की कैपेसिटी में आ जाते हैं कि पैसा बैंक ने आपको दिया और आप उस पैसे को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप कैपेसिटी ही चेंज कर देते हैं जब किसी इंस्टीट्यूशन की, तो ही उसकी जो है वो रिटर्न में डिफरेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर बैंक आपको पैसे दे रहा है और वो मुशारका की फॉर्म में दे रहा है, यानी बैंक शराकतदार बन रहा है आपके बिजनेस में, तो बैंक जो अर्न करेगा वो प्रॉफिट अर्न करेगा। अच्छा, बैंक प्रॉफिट अर्न उसी सूरत में करेगा जब आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे। जबकि इस्लामिक कन्वेंशनल बैंक को इस बात से गरज नहीं है। जब वो पैसे आपको दे देता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म देता है या वो लॉन्ग टर्म देता है, आपके बिजनेस को चलाने के लिए देता है या आपके किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए देता है, तो वो ये बात नहीं देखता या इस बात से वो सर्फ नजर कर देता है कि आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में है या नहीं है। वो अपनी सेट डेट के ऊपर आके आपसे मार्कअप रिकवर करेगा, आपसे अपना इंटरेस्ट रिकवर करेगा, आपसे अपना प्रिंसिपल रिकवर करेगा। जबकि अगर वही इस्लामिक बैंकर होगा या इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग होगी, तो आपके बिजनेस अगर प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, तो अगर बैंक आपके साथ शराकतदार है या रनिंग मुशारका उसने आपको दिया हुआ है, तो इस्लामिक बैंक आपसे प्रॉफिट रिकवर नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है, इस पर रूल नहीं कर सकता और ना ही वो करता है। तो ये कैपेसिटी ही जब बैंक की चेंज होती है अंडर इस्लामिक रूल ऑफ मोड ऑफ फाइनेंसिंग, तो वो जब शराकतदार बनता है पैसा देकर, बिजनेस के अंदर ऑनर बनता है, तो फिर उसकी जो कैपेसिटी जब चेंज होती है तो उस कैपेसिटी की वजह से वो प्रॉफिट नहीं ले सकता या ले सकता है। जबकि इस्लामिक बैंक में, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग में उसकी कैपेसिटी सिंपल लेंडर की है, तो लाजमी सी बात है लेंडर को तो इस बात से गरज नहीं होता कि जिसने उधार लिया है वो प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा है। वो जिस डेट के ऊपर आपने उसको वादा करा है कि मुझे मैं आपका इंटरेस्ट वापस करूंगा और या आपका प्रिंसिपल वापस करूंगा, वो उस डेट पे आपके पास आके डिमांड करेगा और आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस करना होगा। जबकि इस्लामिक बैंक्स में इस तरह से नहीं होता। अगर इस्लामिक बैंक्स ने आपको रनिंग मुशारका दिया और कन्वेंशनल बैंक ने आपको रनिंग फाइनेंस दिया, दो प्रोडक्ट है ना हमारे पास। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को मैनेज करने के लिए हमें इस्लामिक बैंक से हम चाहें तो रनिंग मुशारका ले लेते हैं, कन्वेंशनल बैंक से हम जाते हैं तो हम आप रनिंग फाइनेंस ले लेते हैं। दोनों सूरत हाल में अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है तब तो कोई मसला नहीं है, हम रनिंग मुशारका लेकर उसकी एक साल के बाद या क्वार्टरली जब हम उसकी प्रॉफिट पे करते हैं तो हम प्रॉफिट पे कर देंगे, और हम प्रिंसिपल अगर हम पे कर रहे हो तो हम प्रिंसिपल पे कर देंगे। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल मोड में और प्रॉफिट में चल रहे हैं तो भी हम प्रॉफिट भी पे कर देंगे टाइम पे, या इंटरेस्ट वापस कर देंगे और प्रिंसिपल भी वापस कर देंगे। लेकिन जब लॉस होगा उस सूरत हाल में क्या होगा? रनिंग फाइनेंस जिसने जिसने बैंक ने हमें दिया होगा वो रनिंग फाइनेंस की ट्रीटमेंट वैसे ही करेगा, और हर क्वार्टर के एंड पर हमसे अपना इंटरेस्ट लेने के लिए, वापस लेने के लिए आएगा और प्रिंसिपल वापस करने के लिए हमसे तकाजे करेगा एक साल के अंदर। जबकि अगर मैं इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, मैंने रनिंग मुशारका लिया और क्योंकि बैंक मुशारिक बन गया है, शराकतदार बन गया है उस प्रोडक्ट में, जब उसने मुझे पैसा दिया है, तो अगर उस सूरत हाल में मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है तो बैंक मुझसे प्रॉफिट रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस ही लॉस में, तो एक शराकतदार को प्रॉफिट कैसे मिल सकता है? क्योंकि बैंक भी शराकतदार है, मैं भी शराकतदार हूँ। रनिंग मुशारका दिया है बैंक ने तो बैंक मुझसे रनिंग मुशारका के अंडर प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकेगा, उसको लॉस में शेयरिंग करना पड़ेगी मुझसे। इसी तरह से अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की बात करें, अगर हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लेनी है तो हम इस्लामिक मोड में कैसे ले सकते हैं और कन्वेंशनल मोड में कैसे ले सकते हैं, वो डिफरेंट किस तरह से। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अगर हमें चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई मनी मार्केट लोन चाहिए, यानी कि अगर हमें 6 महीने के लिए लोन चाहिए, या हमें अपनी इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए और बनाने के लिए रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करना है, तो हम इस्लामिक बैंक से भी ले सकते हैं और कन्वेंशनल बैंक से भी ले सकते हैं। अगर हम इस्लामिक बैंक में जाएंगे तो हमें वो मुराबा या मुसावमा देगा, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाली ट्रांजेक्शन देगा। या अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो वो हमें
इस्तिस्ना देगा कि प्रोडक्ट बनाए हम, वो हमें पैसा दे इस्लामिक बैंक, हम प्रोडक्ट बनाए और बनाकर बेचें तो हम उसको प्रॉफिट वापस करें, या वो हमें फिनिश गुड्स को फाइनेंसिंग करने के लिए तिजारत देगा। अगर हम कन्वेंशनल में जाएंगे तो वो मनी मार्केट लोन देगा हमको, मनी मार्केट लोन देगा या एक्सपोर्ट रिफाइनेंस देगा इस तरह की, या बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी देगा। तो दोनों सूरत हाल में जब बैंक हमें पैसा देगा तो एक में वो हमारा बिजनेस पार्टनर होगा, इस्लामिक बैंक हमारा बिजनेस पार्टनर होगा, और इस्लामिक बैंक शरिया प्रिंसिपल के थ्रू हमें पैसे देगा और हम उस पैसे को शरिया प्रिंसिपल के थ्रू यूज करेंगे और बैंक को पैसे वापस करेंगे। बैंक को उसका प्रिंसिपल भी वापस करेंगे और बैंक को उसका प्रॉफिट भी वापस करेंगे। लेकिन अगर समहाउ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में अगर हमने पैसा लिया और हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सके, और किसी भी वजह से या किसी भी सूरत हाल में हमारा बिजनेस लॉस में चले गया और हमारा बिजनेस बंद हो गया और हम वो प्रोडक्ट बना नहीं सके और हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सके, तो उस वक्त इस्लामिक बैंक जो है वो हमसे वो प्रॉफिट अपना रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हुई और उस सूरत हाल में ट्रांजेक्शन का लॉस बैंक को बेयर करना पड़ेगा। जबकि कन्वेंशनल बैंक जो है वो इस बात से सरफ नजर करके हमसे अपना इंटरेस्ट भी रिकवर करेगा और प्रिंसिपल भी रिकवर करेगा। क्योंकि इस्लामिक बैंक ने हमें जो पैसा दिया है वो या तो एज अ रब्बुल माल दिया है, या फिर एज अ बिजनेस पार्टनर दिया है, या फिर एज अ सेलर ऑफ द प्रोडक्ट दिया है। जबकि कन्वेंशनल बैंक वाले ने हमें पैसा सिर्फ एक ही कैपेसिटी में दिया है, वो है लेंडर। चाहे वो हमें रनिंग फाइनेंस दे रहा हो तो भी वो लेंडर है, चाहे वो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दे रहा हो तो भी वो लेंडर है, चाहे वो हमें शॉर्ट मिड टर्म फाइनेंसिंग दे रहा हो तो भी वो लेंडर है, चाहे वो हमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग दे रहा हो तो भी वो लेंडर है। हर सूरत हाल में कन्वेंशनल बैंक लेंडर है और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि वो अपनी मेच्योरिटी पे इंटरेस्ट रिकवर करे और प्रिंसिपल रिकवर करे। जबकि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जो इस्लामिक बैंक्स होते हैं वो किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन अगर दे रहे हैं, तो अगर मुराबा दे रहे हैं तो वो सेलर ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दे रहे हैं तो वो सुकूक की मद में देंगे, या वो मुदारिब की मद में देंगे, वो रब्बुल माल बन जाएंगे और हम मुदारिब बन जाएंगे। तो तीनों सूरत हाल में उसकी बैंक की कैपेसिटी बिल्कुल चेंज होगी और इस्लामिक बैंक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना प्रॉफिट रिकवर करेंगे, और वो उस सूरत में रिकवर करेंगे जब बैंक जो है वो जब कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही हो या उसका बिजनेस चल रहा हो और वो प्रॉफिट जनरेट कर रही हो। अगर वो लॉस में चले जाएगा या वो प्रोडक्ट जिसके लिए उसने फाइनेंसिंग ली है वो प्रोडक्ट किसी तरह से किसी भी मिसहैप की वजह से वो लॉस मतलब नुकसान हो गया या प्रोडक्ट तबाह और बर्बाद हो गई, तो इस्लामिक बैंक्स उस वक्त अपना प्रॉफिट सीज करेंगे और वो प्रॉफिट नहीं ले सकेंगे और उनको लॉस बियर करना पड़ेगा और लॉस में वो शराकत दार होंगे। इसी तरह से अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट इस्लामिक में और डिफरेंशिएट कन्वेंशनल में यह है कि एक ट्रांजेक्शन है जिसके लिए मुझे 3 महीने बाद फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर मेरी एक एलसी है, मैंने आज इंपोर्ट करा माल और 3 महीने बाद उसकी मेच्योरिटी और मुझे फॉरवर्ड कवर बुक करना है, तो मैं इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग से भी फॉरवर्ड कवर कर सकता हूँ बुक और मैं कन्वेंशनल मोड से भी फॉरवर्ड कवर बुक कर सकता हूँ। लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होगा। इस्लामिक में मैं वादा करूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भाई एज पर इस्लामिक रूल मैं ये फॉरेन एक्सचेंज आपसे 3 महीने बाद परचेज करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में, इस्लामिक बैंकिंग में या शरिया कंप्लाइंट मोड में या टर्म में मैं सिर्फ वादा करूंगा फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करने के लिए आज से 3 महीने बाद का। जबकि कन्वेंशनल मोड में मैंने परचेज कर लिया, फॉरवर्ड में परचेज कर लिया, यानी कि एक चीज मौजूद नहीं है लेकिन मैंने उसको मुस्तकबिल के लिए परचेज कर लिया अभी से। जबकि अगर हम शरिया में बात करें तो शरिया में कोई भी चीज ऐसी परचेज नहीं कर सकते जो एग्जिस्ट ही ना करती हो। जबकि कन्वेंशनल मोड में आप वो चीज परचेज कर सकते हैं, फॉरवर्ड बुकिंग आप कहते हैं उसको या फ्यूचर बुकिंग कर कहते हैं आपको। एक चीज का वजूद नहीं है लेकिन आप उसकी परचेज भी कर सकते हैं, आप उसकी सेल भी कर सकते हैं। जबकि इस्लामिक मोड में हम उस चीज की परचेज और सेल कर ही नहीं सकते जो फिजिकली मौजूद ना हो। लेकिन उसका हल निकाला है मुफ्ती आने कराम ने और शरिया एडवाइजर ने कि उसके लिए आप वादा कर सकते हैं, एक्चुअल सेल एंड परचेज नहीं होगी क्योंकि वो चीज मौजूद नहीं है। तो आप वादा जरूर कर सकते हैं कि 3 महीने बाद मैं परचेज कर लूंगा, लेकिन आपकी एक्चुअल परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन हो नहीं सकती। तो इस तरह से हम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग को यूज करते हुए हर वो प्रोडक्ट जो कि कन्वेंशनल बैंक ऑफर कर रहा है या कन्वेंशनल बैंक यूज कर रहा है
वो हम अंडर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग या इस्लामिक रूल के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इस वक्त कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जो जिसका ये दावा किया जाए कि इस्लामिक बैंकिंग में मौजूद नहीं है और कमर्शियल बैंकिंग में मौजूद है। तमाम प्रोडक्ट्स जो भी हैं, चाहे वो फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट्स हैं या वो डिपॉजिट की प्रोडक्ट्स है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट हैं, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट की प्रोडक्ट हैं, वो तमाम की तमाम इस्लामिक बैंक्स में और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें बस। अब बस नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। Abbas, please. जी, अब ये कुछ प्रोडक्ट को हमने एलिब्रेट कर लेते हैं ताकि जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं है प्रोडक्ट्स का, उसको उनको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाए। मुराबा है, जैसे मैंने जिक्र करा कि अगर मुझे पैसे चाहिए अपनी इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए, तो मैं जाऊंगा इस्लामिक बैंक के पास और मैं कहूँगा मुझे, अगर मैं फर्टिलाइजर का सेलर हूँ, मेरी कंपनी फर्टिलाइजर जो है वो सेल आउट करती है, परचेज करती है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं कहूँगा मुझे इन्वेंट्री परचेज करना है, मुझे इसके लिए पैसे दे दें। तो बैंक मुझे पैसे नहीं देगा, बैंक जो है वो मुझसे उस बंदे की क्रेडेंशियल मालूम करेगा, यानी सप्लायर की क्रेडेंशियल मालूम करेगा जिससे मैं प्रोडक्ट लूंगा और प्रोडक्ट लेके मार्केट में बेचूंगा। इस्लामिक बैंक क्या करेगा, मुझसे उस प्रोडक्ट के ऑन जो सप्लायर है उसकी क्रेडेंशियल लेगा, उसके अकाउंट की डिटेल लेगा और मुझसे इनवॉइस लेगा, और वो पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट करने के बजाय वो सप्लायर को उसके पैसे दे देगा प्रोडक्ट के, और उस प्रोडक्ट का खुद ऑनर बन जाएगा, वो प्रोडक्ट खुद खरीद लेगा और वो फर्टिलाइजर खुद खरीद के मुझे जो है वो मुझे दे देगा। और जब मैं उस प्रोडक्ट का कोई बायर लेकर आऊंगा, ढूंढ के लाऊंगा एज एन एजेंट, तो वो प्रोडक्ट जो है वो बैंक मुझे बेच देगा और बैंक मुझे कहेगा कि आपने जो प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाया उस पे हमारा शेयर जो है, जो भी एग्रीड हुआ था 10% या 12% या 15%, वो शेयर मुझे आप मेरा दे दें और बाकी जितना आपने प्रॉफिट कमाया वो आप रखें। तो इस तरह से ये कन्वेंशनल बैंक में अगर आप जाएंगे तो वो आपको सिंपल पैसे दे देगा और आप इन्वेंट्री जितनी की लें, आप प्रॉफिट में बेचें या ना बेचें, बैंक को इस बात से कोई गरज नहीं है। वो आपसे सिर्फ 3 महीने का जो भी ड्यूरेशन पे आपने सेट करा है फाइनेंसिंग, मेच्योरिटी पे आके आपसे वो पैसे ले लेगा। जबकि इस्लामिक में हमारे पास मुराबा या मुसावमा की जो है वो प्रोडक्ट मौजूद होती है, जिसके थ्रू हम जो है वो अपनी इन्वेंट्री को फाइनेंसिंग कर सकते हैं या अपने रॉ मटेरियल को फाइनेंस कर सकते हैं अगर हम प्रोक्योर करना चाहें। इसी तरह से अगर आपको कोई इंपोर्ट करना है, कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है और आपको या आपको कोई स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करना है, तो आप कन्वेंशनल बैंकिंग में जाते हैं, आप सिंपल एलसी खोल देते हैं और आपकी जो है वो प्रोडक्ट जब इंपोर्ट होती है और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो जाते हैं तो बैंक उसको पेमेंट कर देता है। जबकि इस्लामिक मोड ऑफ बैंकिंग में जब जब आप एलसी खोलने जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि भाई आप एलसी तो खोल लेंगे, अंडर किस एग्रीमेंट के थ्रू एलसी खोलेंगे, वकाला के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू एलसी खोलेंगे, यानी बैंक एज अ वकील आपका बन के एलसी खोले और आपके ब्याज पे माल मंगाए, या आप अंडर जो है वो मुसावमा एग्रीमेंट जो है वो एलसी खोलेंगे, यानी बैंक आपके ब्याज पे इस प्रोडक्ट का परचेजर बन के माल मंगाए। तो इस तरह से उस एलसी फॉर्म के ऊपर टिक लगी हुई होती है कि आप किस मोड ऑफ फाइनेंसिंग को यूज करेंगे या किस कैपेसिटी में बैंक को यूज करके प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम सिंपल ट्रांजेक्शन ले लें तो हम एज अ वकील बैंक को वकील करते हैं और अपना हाजिर बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एलसी खोलने के लिए हमारी कैपेसिटी पे या हमारी क्रेडेंशियल पे, हमारी क्रेडिबिलिटी पे सप्लायर को भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो बैंक को इन्वॉल्व करते हैं कि भाई कोई बैंक श्योरिटी ले आपके ब्याह पे और वो एलसी खोले। तो जब बैंक एलसी खोलने जाता है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में, तो वो अपनी कैपेसिटी को पहले सर्टेन करवाता है कि मेरी कैपेसिटी क्या होगी, कि मैं या एज अ वकील आपका एजेंट, यानी आपका एज एजेंट बन के एलसी खोलूं, या मैं एज ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट बन के एलसी खोलें, या वो प्रोडक्ट अपने आप ब्याज पे मंगा लें और आपको बेच दूं। तो जब वो अपनी कैपेसिटी को डिटरमाइन कर लेता है बैंक, तो फिर उसके बाद एलसी खोलता है और वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है। प्रैक्टिकली बिल्कुल उसी तरह से ट्रांजेक्शन होती है कि एलसी खुलेगी और उसके पास सप्लायर के पास एलसी जाएगी और वो प्रोडक्ट शिप करेगा और
डॉक्यूमेंट बैंक को भेजेगा और बैंक के पास जब डॉक्यूमेंट आएंगे तो वो 5 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट को रिटायर करेगा। तो प्रैक्टिकली बिल्कुल वो उसी तरह से जिस तरह से कन्वेंशनल बैंक में एलसी खुलती है, लेकिन सिर्फ फर्क ये आता है कि बैंक अपनी कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है एलसी खुलने से पहले। इसी तरह से मुदारबा की अगर आप बात करें तो मुदारबा दो तरह से यूज हो सकता है। मुदारबा यानी अगर कोई कंपनी को पैसे चाहिए तो भी वो मुदारबा यूज कर सकती है, और अगर किसी कंपनी को पैसे रखवाने हैं तो भी वो मुदारबा यूज कर सकती है। वो किस तरह से? अगर किसी कंपनी को पैसे चाहिए तो उस सूरत हाल में उसकी कैपेसिटी जो है वो मल्टीप्लायर की होगी और बैंक की कैपेसिटी होगी रब्बुल माल की, यानी ऑनर ऑफ द मनी की होगी। जब वो बैंक पैसा देगा तो वो रब्बुल माल होगा और कंपनी मुदारिब हो जाएगी या मल्टीप्लायर हो जाएगी। मैंने कंपनी किसी भी बैंक से उधार पैसा लिया 1 अरब रुपए, और अपने कंपनी लगाने के अपनी कंपनी के जो मैंने खर्चे वगैरह करने होते हैं, या मुझे कोई मिड टर्म शॉर्ट टर्म हमें कोई फाइनेंसिंग लेना है कोई कंपनी की मेंटेनेंस के लिए या प्लांट की मेंटेनेंस के लिए, तो मैंने जब बैंक से फाइनेंसिंग ली तो मैं मुदारिब बन जाऊंगा और बैंक जो है वो रब्बुल माल बन जाएगा। यानी बैंक पैसा देगा अपना और मैं उस पैसे को मैनेज करूंगा और मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी बिजनेस में यूटिलाइज करूंगा, और जो प्रॉफिट अर्न करूंगा बैंक को पैसे वापस कर दूंगा। यही प्रोडक्ट अगर मैं बैंक में पैसे रखवाने के लिए कोई कंपनी यूज करती है तो उसमें कैपेसिटी बिल्कुल स्विच हो जाती है। उस सूरत हाल में जब मैं डिपॉजिट में पैसे रखवाता हूँ बैंक को या बैंक के पास अपने पैसे रखवाता हूँ तो कंपनी जो है वो रब्बुल माल बन जाती है और बैंक मल्टीप्लायर बन जाता है। यानी कंपनी का पैसा बैंक अपने पास लेता है, अपने पूल में, अपने पूल ऑफ फंड में वो डालता है और बैंक उस पैसे को मल्टीप्लाई करता है। तो मुदारबा का प्रोडक्ट दोनों तरह पे यूज होता है। यानी अगर किसी कंपनी को अपनी ट्रेजरी मैनेज करने के लिए फंड चाहिए तो भी वो यूज करेगा, लेकिन उस सूरत हाल में कंपनी की कैपेसिटी मल्टीप्लायर की या मुदारिब की होगी, जबकि बैंक की कैपेसिटी जो है वो रब्बुल माल की होगी, क्योंकि बैंक फाइनेंसिंग कर रहा है, बैंक पैसा दे रहा है। जबकि दूसरी सूरत हाल में जब मैं अपनी एक्सेस मनी को, एक्सेस लिक्विडिटी को बैंक में रखवा रहा हूँ और बैंक को वो पैसा दे रहा हूँ, तो उस सूरत हाल में मैं रब्बुल माल बन जाऊंगा एज अ कंपनी, और एज अ ट्रेजरर ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैं रब्बुल माल बन जाऊंगा, और बैंक जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मुदारिब बन जाएगा या मल्टीप्लायर बन जाएगा, और उस पैसे को उससे बिजनेस करेगा और उस पैसे से जो प्रॉफिट कमाएगा उससे वो मुझे रिटर्न देगा। इसी तरह आप सुकूक की बात करें तो ये कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग का एक नेमुल बदल है। यानी जब कोई भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, यानी कोई मोटरवे बनाई जा रही है, कोई बहुत बड़ी कंपनी लगाई जा रही है और उसके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जरूरत है, तो उसके लिए बैंक के पास सुकूक का प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर मुझे 5 अरब रुपए चाहिए और मैं एक सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहा हूँ या मैं एक मोटरवे बना रहा हूँ, तो मैं बैंक से जो मोड ऑफ फाइनेंसिंग यूज करूंगा वो सुकूक है। अगर मैं कन्वेंशनल बैंक से जाऊंगा तो वो मुझे बॉन्ड इशू करवाएंगे करेंगे मेरे मेरे फेवर में, जबकि अगर मैं कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जाऊंगा तो मेरे फेवर में सुकूक इशू करेंगे। अब इसको सिर्फ इस तरह से समझ लेते हैं कि दोनों सूरत हाल में मुझे अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए पैसे चाहिए या मोटरवे, एज ए गवर्नमेंट मुझे मोटरवे बनाने के लिए पैसे चाहिए। कन्वेंशनल बैंक में जाऊंगा या तो कन्वेंशनल बैंक बॉन्ड इशू करेगा और कन्वेंशनल बैंक जो है मुझे पैसा उधार देगा, और कन्वेंशनल बैंक की कैपेसिटी फिर वो है लेंडर की आ जाएगी, और कन्वेंशनल बैंक मुझे ये कहेगा 5 साल में आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, उसके बाद जो है वो मुझे ना रिटर्न मेरा प्रिंसिपल और मेरा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो मुझे वापस करिएगा। जबकि इस्लामिक मोड में वो सुकूक की तरह यूज होता है। और सुकूक क्या होता है? सुकूक ये होता है कि इस्लामिक बैंक या इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझे पैसा देंगे और वो कहेंगे आप अपनी अपनी फैक्ट्री तैयार करें, और जब आप अपनी फैक्ट्री तैयार करें तो उस एसेट के हम ऑनर बन जाएंगे, और उस ऑनर का जो रिटर्न होगा वो किराए की सूरत में होगा, वो रेंटल की सूरत में होगा। जबकि कन्वेंशनल मोड में उसका जो रिटर्न होगा वो मार्कअप की सूरत में होगा, क्योंकि इस्लामिक कन्वेंशनल मोड में बैंक ने अपने आप को एज अ लेंडर ट्रीट करा है और आपको पैसे उधार दिए हैं, तो वो लेंडर और बोरोअर का रिलेशनशिप है। तो जब लेंडर पैसे देगा तो बोरोअर उसके पैसे को यूटिलाइज करके अपनी फैक्ट्री बनाएगा या अपना मोटरवे बनाएगा या जो भी एसेट बनाएगा, उसका वो रिटर्न उसकी ऑनरशिप की कैपेसिटी में ही देगा, वो अपना रिटर्न जो देगा वो उधार की सूरत में देगा, यानी वो इंटरेस्ट वापस करेगा, वो सूद वापस करेगा लेंडर को, क्योंकि उसने पैसे कंपनी ने या किसी गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो पैसे दिए हैं वो एज अ कर्जदार लिए हैं, एज अ कर्ज पैसे लिया है।
तो वो जो उसको रिटर्न करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा, तो वो उसको सूद वापस करेगा या इंटरेस्ट वापस करेगा। और क्योंकि उस एसेट में उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो कन्वेंशनल बैंकिंग है या कन्वेंशनल बैंक है, उस एसेट में उसकी कोई ऑनरशिप नहीं है, वो सिर्फ लेंडर है। जबकि अगर यही सुकूक की हम बात करें, तो सुकूक में जब वो एसेट बन रहा है और एसेट बन जाएगा, तो जो बैंक ने जिसने कन्वेंशनल जिसने इस्लामिक मोड में पैसे दिए हैं, वो उस एसेट का बाकायदा ऑनर होगा। उस एसेट का जब वो ऑनर बन जाएगा, तो उस एसेट के रिटर्न में उसका हिस्सा होगा। यानी वो उस एसिड के ऊपर जो वो आप बना के फैक्ट्री बनाएंगे या मोटरवे बनाएंगे, और मोटरवे बन के उसका टूल जो है वो यूज होगा, या उसका टूल जो है वो मोटरवे जब गाड़ियां चलेंगी और उसका टूल रिकवर होगा, तो उस टूल से, उस किराए से, उस कंट्रीब्यूशन से बैंक का शेयर जो है वो वापस किया जाएगा, और वो किराया वापस किया जाएगा, क्योंकि उस मोटरवे का वो ऑनर है। बैंक भी ऑनर है, क्योंकि उसने आपको एज अ लेंडर पैसा नहीं दिया था, सुकूक की मद में आपको एज अ ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट पैसा दिया था, और आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी उस पुल को बनाने के लिए, उस हाईवे को बनाने के लिए, उस मोटरवे को बनाने के लिए जब उससे पैसा लिया, तो वो ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट बन गया। तो उस एसेट की यूटिलाइजेशन जब होगी और उससे जो पैसा रिकवर होगा, जो उसका रेंट रिकवर होगा, तो उस रेंट से जो है वो इस्लामिक बैंक अपना जो है वो प्रॉफिट या अपना शेयर जो है वो वापस लेंगे। इसी तरह से इस्लामिक मनी मार्केट फंड जिस तरह से होते हैं, वो ये बिल्कुल वो भी इसी तरह से होते हैं कि इस्लामिक में मनी मार्केट लोन अगर आपने लिया, एक कन्वेंशनल में अगर आपने लिया, तो आपके पास एक महीने के लिए भी ले सकते हैं, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपने मनी मार्केट लोन लिया, और आपने वही बात है, फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने एज अ बोरोवर लिया लोन, बैंक ने एज अ लेंडर आपको लोन दिया, और आपको वो जो है वो मेच्योरिटी पे पैसे उसके वापस करने होंगे, और आपको मेच्योरिटी पे जो है वो आपको सूद भी वापस करना होगा। जबकि अगर आप इस्लामिक में जाएंगे, तो आपको टर्म मुशारका की एक प्रोडक्ट है, इसके नेमल बदल के तौर पे मनी मार्केट लोन के लिए टर्म मुशारका की एक प्रोडक्ट होती है, उसमें आप एज अ मुशारिक जो है वो बैंक शराकतदार बनता है उस ट्रांजेक्शन में, और बैंक आपका बिजनेस पार्टनर बनता है, और वो आपको पैसे देता है, और 6 महीने के बाद वो प्रॉफिट आपसे रिकवर करेगा और अपना प्रिंसिपल रिकवर करेगा, इन केस अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में होगा तो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है वो फैक्टर है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में रन होना इस्लामिक बैंक का एक म्यूचुअल कंसर्न है, म्यूचुअल बेनिफिट है, कि वो इस बात का बड़ा फिक्रमंद होगा, और वो इस बात को इंश्योर करता रहेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चले, क्योंकि अगर प्रॉफिट में चलेगा तो ही वो रिटर्न उसके पैसे हो सकेंगे। हर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, लेकिन जो रनिंग मुशाका या टर्म मुशाका के प्रोडक्ट हैं, उसमें बैंक उसमें जो बोरोवर है, यानी जो कोई कंपनी जो पैसा लेती है, उसमें उसका बिजनेस प्रॉफिट में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस लॉस में चले जाएगा, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है रनिंग मुशारका या टर्म मुशारका, उसमें जो है वो बैंक, अगर प्रॉफिट में कोई बिजनेस चल रहा है, तब तो वो बैंक रिकवर कर सकता है अपना प्रॉफिट, लेकिन अगर वो बिजनेस ही लॉस में चला गया, तो वो बैंक अपना प्रॉफिट लूज कर जाएगा, वो प्रॉफिट रिकवर नहीं कर सकता। जी अब्बास, नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। Jamal sir, in the meantime, I have one humble request for you. जी जी We have few non-Pakistani, or we must say foreign participants with us, and they can't understand the Urdu medium, the medium of language that we are using. So it is a humble request that if you can share the slides with them. One is Mr. Yusuf Abdul Karim, and one is Mr. Anas Yu Aliyu. He's from Nigeria, and they can't understand the language. So I will be really very obliged that if you can share presentation with them. Yeah, sure, sure, no problem. I will share with them. Okay, thank you. So real world example, here comes the real world example. इसमें अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 11 सुकूक इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी अभी इस वक्त लोन ले रही है इस्लामिक बैंक से सर्कुलर डेट वगैरह को खत्म करने के लिए, तो वो इजारा सुकूक जो है वो इशू कर रही है। इसी तरह से मुराबा जो है वो मिजान बैंक की या बैंक की, अगर आप इससे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लेंगे कोई भी इन्वेंट्री प्रोक्योर करने के लिए, या कोई भी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए, तो वो
मुराबा की प्रोडक्ट उनके पास मौजूद है। किसी भी आप इस्लामिक बैंक की या इस्लामिक बैंक की विंडो से ये प्रोडक्ट आप फ्रिक्वेंटली ये यूज़ हो रही हैं और हम लोग भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने वकाले के एग्जाम्पल ली कि फॉर एलसी ओपनिंग banks use wakala term या wakala mode of transaction to open the LC. इसी तरह से मुदारबा का जो है मैंने आपको मिसाल दी थी कि बैंक जब आपसे डिपॉजिट लेता है, इस्लामिक बैंक आपसे डिपॉजिट लेते हैं तो बैंक उसमें मुदारबा का प्रोडक्ट यूज करता है जिसमें बैंक जो है वो मुदारिब बन जाता है। बैंक विल बिकम मल्टीप्लायर एंड द कस्टमर विल बिकम द ऑनर ऑफ द मनी और द रब्बुल माल। तो बैंक विल मैनेज द फंड्स, बैंक विल मेक द पूल ऑफ फंड्स और बैंक earn money and earn profit and then share the return to the customer under Islamic mode of financing. And the last one is that forward booking under Islamic mode, that is through wa'd-based transaction, that is promise-based transaction, in which bank gets a promise letter signed from the borrower or forward booking customer to execute the transaction on a certain date, on a predetermined date and predetermined terms and condition. Okay, boss, next slide, please. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे बस। Thank you, Abbas. इसी तरह से लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लीजिंग के लिए जो बैंक फाइनेंसिंग है, बैंक गाड़ियों वगैरह के लिए जो अगर हम देते हैं तो वो इजारा है जिसमें ऑनर जो है वो बैंक ही होता है उस व्हीकल का, और आपको कस्टमर को यूटिलाइजेशन के लिए जो है वो राइट दे दी जाते हैं और कस्टमर जो है वो उस एसेट का रेंट पे करता रहता है जब तक वो एसेट यूज करता है। यानी अगर 4 साल के लिए लिया या 5 साल के लिए लिया, और इन दी एंड 5 साल के बाद वो चाहे तो वो एसेट परचेज कर ले चाहे तो ना करे, लेकिन नॉर्मली जो है वो वादा इस तरह से ले लिया जाता है कि 5वें साल में या तीसरे साल में जब वो प्रोडक्ट का टेन्योर एंड हो रहा हो तो वो व्हीकल जो है उसकी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है और वो परचेज कर लेता है बोरोवर। जबकि इस्लामिक मोड में, अगर वो कन्वेंशनल मोड में अगर मैं आपसे गाड़ी की फाइनेंसिंग ले रहा हूँ या किसी कमर्शियल बैंक से ले रहा हूँ तो वो एज ए लैंडर ही ट्रीट होता है। वो आपको गाड़ी परचेज करने के लिए फाइनेंसिंग दे देता है, गाड़ी उसके बाद जल जाए या एक्सीडेंट हो जाए या खत्म हो जाए तो इसमें बैंक का कोई स्टेक नहीं इन्वॉल्व होता। बैंक सिंपल आपसे आपका प्रिंसिपल भी लेता रहेगा और आपसे प्रॉफिट भी लेता रहेगा। जबकि इजारा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इजारा में ऑनर ऑफ द एसेट या व्हीकल का जो एसेट है वो बैंक होता है। तो वो अगर एसेट एक्सीडेंट में तबाह हो जाता है या जल जाता है या किसी भी वजह की वजह से एसेट या व्हीकल तबाह हो जाती है तो क्योंकि ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट और उस व्हीकल का ऑनर जो है वो बैंक होता है तो वहां पे वो सीज कर देता है इंस्टॉलमेंट और प्रॉफिट की या रेंट की जो रिकवरी है वो सीज कर देता है। सुकूक बॉन्ड मैंने वैसे अभी पहले एक्सप्लेन कर ही दिया है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई मुझे फाइनेंसिंग चाहिए इस्लामिक बैंक से तो मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लूंगा और वो बॉन्ड इशू होंगे और उसके लिए मैं जो एसेट बनाऊंगा उसमें ऑनरशिप होगी और उससे रेंट जो है वो एज अ रिटर्न जो है वो मैं वापस करूंगा बैंक को। जबकि अगर ये कन्वेंशनल मोड होगा तो मैं उसको सूद ही वापस करूंगा, इंटरेस्ट ही वापस करूंगा। इसकी एक एग्जाम्पल नीचे दी गई है कि इजारा सुकूक, जो इजारा एनर्जी सुकूक है वो इसकी एग्जाम्पल दी गई है, प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा बस। Our participants are quite enthusiastic about the Q&A session. जी बस अब हम इसको मेरे ख्याल में मूव कर देते हैं Q&A, क्योंकि टाइम हमारा पूरा हो चुका है। तो आप Q&A ले लें तो बहरहाल में और बाकी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन सबके साथ शेयर हो जाएंगी। तो अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन कोई करना चाहे तो मेरा नंबर अब्बास से लेके मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कोई भी चीज़ अगर क्लियर करनी है तो कर सकता है।
Yes, Jabal sir. Alternatively, you can share your email ID, your personal email ID, or over that the participants can contact, or otherwise, I have requested participants to share their email ID so we can individually share your presentation with them rather bothering Yes, you. sure, sure. Okay, sir. So now we have few questions. First of all, I'm really very thankful to you that you have embellished your presentation with practical scenarios and practical aspects that one of our participants has really appreciated as well. So there was a very basic question. I'm going to skip that one. That is the first one from Shaikh Raza. That is regarding Muraba and Musharka, I guess. And then there is a question by Mr. Iqbal. Do you use Tawarruk for liquidity management? Uh, Actually, I have not used that product at the Yes, moment. Yes, so I have no idea about that. I think so. Not very frequently used. Is used in UAE or Middle East side of countries. It's not Yeah, applicable in Pakistan. I have not heard that product to be offered or used uh, in bank industry of Pakistan, or I Yes. might not be aware of that. No. So, sir, it's not applicable over here in Pakistan, but still people are trying to use it, and many other are trying to make a hybrid product of it. And another question for you is from Mr. Murad Ali. How we decide rate for Islamic booking in Islamic mode? We only promise to purchase in future. Yeah, we when we promise for the future transaction, we not only fix the rate, decide the currency, we will also decide the uh, quantity, and we also decide the rate, tentative rate. So it will it will be same, just like Islamic, just like a conventional mode of banking, that we book forward cover on X rate, on X amount, and on X date. All three terms are also included in Islamic WAD based forward booking as well. But the only difference is that if I if practically I do not execute that transaction on the predetermined date, when, for example, I book forward cover under Islamic mode for which is going to be mature on 31st December 2025, and when 31st December 2025 comes and the transaction is not executed, so under Islamic mode, I will not be bound to charge any loss, any compensation to the financial institution. This is the Islamic principle. But in practical, it is not being happened. There is something different which is not being followed in practical banking. There is something loophole. There is a loopholes in every either you are talking about conventional banking or Islamic banking. The fully Islamic banking, in my opinion, Islamic banking is not being fully implemented in Pakistan. Yes, we are in transition phase. We have implemented some products very well in very combined mode, but as far as forward cover is concerned, so I have very huge reservation on it. That although we claim that that is only promise, that is not the purchase and sale of the transaction, and this is the different as compared to conventional mode. But in practical scenario, the transaction is being utilized and executed in the same manner as conventional banking is used. So I Okay. believe that forward cover facility is a little bit immature facility under the promise, because if you do simple promise and you do not fulfill your promise, then in practical world you will not bear any cost. Just you do not fulfill your promise, you just ruin your reputation, you just spoil your reputation, and you will not bear any financial loss. But in practical, Islamic banks
will execute the transaction of forward cover if you book forward cover on what basis even. They are treating the forward cover facility as usual as conventional banking are using. So this is my personal experience. Uh, I think anyone can disagree with me, but my experience is not very in favor of forward booking facility in Islamic banking, because I feel that uh, it is being used as in commercial banking. The same treatment is being given to the both transaction, either forward cover in Islamic banking or a forward cover in commercial banking. Any other question? Hello. Is there any other questions? Sir, there is a slight disagreement with you with Mr. Faraz saying that I do not agree with initial statement regarding niyat. If Islamic banks want to use Islamic products to avoid tax in ADR, so it's okay. So it's his perspective, I believe. And I Sorry, have one. I could not understand. Sorry, could you repeat it? Yes, sir. There was a slight misunderstanding, I guess, and about one of our participants, he said that he disagree with your statement regarding niyat. If Islamic banks want to use Islamic products to avoid tax in ADR, so it's okay, according to him. Okay, according to me, if he is okay, so I respect his opinion. Yes, we have no other option. Everybody has their own right to, Yes, definitely. There is no compulsion on any participant to agree with me. No issues. Okay. Okay, just one more question from you, and then we'll wrap up our session. Uh, in this given macroeconomic conditions in Pakistan, where we have exchange rate volatility and physical deficits, what are your takes on the impact on Islamic treasury management decisions as compared to the conventional setup? Am I clear, sir? Yes. I understand your question. Thank you. I think under Pakistan, as if I talk about Pakistani scenario, so in Yes, sir. Pakistan, the whole ecosystem is very much impacted and affected by the macroeconomic scenario, by geopolitical scenario, by microeconomic Agreed. scenario. So Agreed. we face the same challenge when we try to manage the treasury function under the Islamic law. For example, if I give you the example of my own company, we manufacture fertilizer and we purchase fertilizer from abroad and sell out in the country. So I feel a very lack of practical approach of Islamic scholars and Islamic bankers to understand our business. Islamic banking, I respect Islamic banking, and I have been a very big advocate of Islamic banking since I joined Al Sadiq in 2012. I did Islamic banking course from that, and after that I switched my career to from conventional to Islamic banking. So I feel that Mashallah. the practical approach of Sharia advisor is very uh, thin. The Sharia advisor do not understand. Sharia advisor do not understand the business problem, the business model of the uh, of the of the company. For example, we import the product on bulk basis. The bulk shipment arrives at port of discharge at Karachi, and we try to sell the product from the ship, because to save our cost of loading and loading, because if we take that product to our godown and give possession to the bank and hand over that product to the constructive possession of the bank, that would involve a very huge cost. So to avoid that cost, we try to sell that product from the port of discharge, that is Karachi port. So in that scenario, when I go for taking the DO at that stage, when the product has not been shipped to the godown of our premises or the pledge premises,
the Sharia advisor are hesitant and reluctant to give the delivery order because they said that we have not taken the possession. So we try to make them understand that you can take the possession on court, you take the constructive possession and allow us the DO from that destination, and we take the product and by payment your principal and profit. Understand our business, because if we delay that delivery period, we will lose the customers. So the Sharia advisor are very, very reluctant to understand our business problems. That is the one product, one scenario in previous company when I was in oil manufacturing, OMC, oil marketing company. In this scenario, the oil offloaded from terminal to terminal, and you cannot identify the product because the product of the all customer of the all OMC are kept in the terminal, and you cannot differentiate, you cannot identify your product because the petrol, if I import the petrol of 50,000 barrel from a country, so my participation in that 50,000 barrel would be PSO. Apart from PSO, there would be Go, there would be Taj Gasoline. So there are 4 to 5 participants consolidatedly import the consignment of the oil, and the oil is combinedly travel from one destination to another destination. When I go to the bank that I want to take Moraba on that product, so Sharia advisor or Sharia Muftiyan, whatever you say, they are reluctant to finance that type of transaction due to the Sharia rules or principle or the practical approach they have experienced. So they are reluctant to finance that type of project. So there are still some business who are really in need of Islamic mode of financing, but Sharia advisor, product designer in the financial institution do not understand that business. They are reluctant to make or modify the product to finance them, to give the liquidity option to them. So that is one of the biggest challenge which I have been facing, because I have been managing the treasury since 2015 when I joined International Steel Limited after banking industry. So since then I have been facing that problem, that practical approach is missing. If you want to implement the true Islamic banking, you have to understand the problem of the customer, problem of the business, the practical implementation, practical implication of the business as well. Until unless the true Islamic banking cannot be implemented. Excellent, excellent, Rakpab. I must say you have highlighted customers' pain points and various other products which need modification, identification, and accordingly customization according to customers' needs and and various customized products. Am I right, Yes, sir? just last one suggestion is that when the change, how the change can occur. The change can occur only when uh, the professional banker first understand the banking. They understand the banking very well, and then they should move toward the toward becoming the Sharia advisor or Sharia scholar and make the product tailor-made product. If I simply a Sharia advisor and I do not have a practical knowledge, and I have never worked in a banking as a relationship manager or as a customer service manager, I cannot understand the banking. And because Mufti or Sharia advisor give their fatwa on a scenario which is presented towards them, and if they do not have any practical experience to understand that scenario, how can they help us to find out that the solution? How can they design the product? Because they do not have any practical knowledge of the banking. So if the practical or professional banks can become the Mufti or Sharia advisor or Sharia scholar, then the change will definitely be occur. Thank you, sir. Thank you for elaborating so well this very, I must say, complicated topic. It's not complicated, but the products in it are complicated and they require customization and a better understanding. And for that, Al Sadiq is playing its key role in training and devising all those we have
Okay. So in devising, and most importantly, the thing is that we are working on our collective knowledge. We are helping each other to gain or benefit from each other's knowledge and whatever little knowledge we have. But apart from your knowledge, uh, we share our own experiences and our point of views. So again, from behalf of Al Sadiq Institute, I'm very thankful, and I extend. You also, I would like to thank Al Sadiq as well that they gave the opportunity to me, and I have tried my level best to elaborate briefly because the time 1 hour is very short to explain Yes, such a huge topic. This every topic needs 3 to 4 hours class separately. दरिया को हमने कूजे में बंद करने की कोशिश की है. जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा. तो जी. बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग. और मैं नंबर मेरा अब्बास के पास मौजूद है, ईमेल एड्रेस मौजूद है, जिसको भी जरूरत हो तो आप उसको दे सकती हैं. We are very kind to you. We are very thankful to you for your kindness. Please, for the rest of our participants, I'm really very thankful to you for joining us this afternoon. Please stay connected with our institute for updates on our upcoming webinars, sessions, and professional development opportunities. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the benefit and the beneficial knowledge and barakah in our professional endeavors. Thank you all आमीन. for being part of today's enlightening session. Allah आमीन. Hafiz. अल्लाह हाफिज.